इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन कैसे करना है. So we're going to start the lecture. At the start of the lecture, there's a trick to analyze or design a compression member quite easily using a table. This table is given in AISC code chapter 4. Table number is 422 and page number is 725. I'll show you the table in a while. So this table is a column load table, and it has slenderness ratio values from 1 to 200, and column load gives the values. This basically load table gives the values of strength values for LRFD and ESD method corresponding to the slenderness ratio value. You can use this table to quickly design or analyze any compression member without using equations. Now if I can show you the design table, this is this table, and you can quickly go to the page number 725 of AISC manual, and here you can see for slenderness ratio value, there are values given, design strength value is given as per ASD, and for the LRFD method against for different yielding strength steel. If the yielding strength value is 35 KSI, you're going to use this column. And similarly, if you use A36 steel or higher yielding strength steel, then you're going to use the respective columns. Let's say if there is a steel and it has a yielding strength of 50 KSI, you're going to use this column. For each slenderness ratio, let's say if you have a slenderness ratio of 2, then correspondingly as per ASD, the strength would be FC critical divided by that resistance factor would be 29.9. and 5 FC F critical for LRFD method, that value would be 45. I'll show you how to use this table in a while when we're going to start our problem. So this is the table. All you need to find is the slenderness ratio. You just need to find out the slenderness ratio, and according to corresponding to that slenderness ratio, you're going to go to the table and you're going to use that value. So this is our problem. We have got a problem or design problem. Basically in this problem we need to design a compression member. Whereas in the previous lecture we learned how to analyze a compression member. हमने analysis कैसे करना था, that I told you in the previous lecture. In this lecture we're going to design it. So you need to design a W member, W section member, W18. As I told you time and time again, what is meant by W18? W18 is that W section, and its depth is 18 inches of A992 steel. A992 steel has a yielding strength of 50 KSI that can resist a dead load of 100 kips and a service live load of 300 kips. The effective length is 26 feet. The effective length means that K value is K factor is multiplied by the 8, and because it has pin supports here, value of K would be 1. So length is 26 feet and KL would also be 26 feet. So without further ado, we're going to start our problem. So first of all, we are given with the W18 section member. So PU, we need to find out the ultimate load. We are given with the dead load. हमारे पास dead load given है. We are given with the live load. So first of all, we're going to find out the P ultimate. So it's 1.2 dead plus 1.6 live. So dead load is 100 kips, whereas live load is 300 kips. And we're going to find out the ultimate load. So this is the first step to find out the ultimate load. The next thing to look for is we need to find out the critical stress. So इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले we are not sure that what is the section that we are going to use. So initially हमें critical stress कैसे पता चलेगा? And arbitrary we are going to use hit and trial method. So सबसे पहले हम choose करेंगे critical stress is equal to 33 KSI. Now how come this 33 KSI? ये 33 KSI कहाँ से आया? So इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास जो steel है that is A992 steel, and it has a yielding strength of 50 KSI. It has a yielding strength of 50 KSI. It's given in the design aid as well as, but आपको याद भी होनी चाहिए. So आप इसका क्या करेंगे? इसकी 2/3 value find out करेंगे. So you're gonna multiply 50 multiplied by 2/3. I'm gonna show you in the next slide that how to calculate this thing. So where does this thing comes from? Yielding strength is 50 KSI, and you're gonna find the 2/3 of 50 KSI. So 2 divided by 3
multiply by 50 KSI, and that comes out to be equal to 33 KSI. 2/3 of 50 KSI या 2/3 of yielding strength, that is the initial critical stress which we gonna assume. ठीक है, हम शुरू में assume करेंगे कि what is the critical stress, it is 2/3 of Fy. So initially we gonna assume critical stress is equal to 33 KSI, and then उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे हम trial 1, so this is the first trial. First step is to find the ultimate load, then it is to find out the critical stress, and then we need to find out the area required against this critical stress. That means हम जो भी section use करेंगे उसका critical stress इतना है. अब section कौन सा use करना है, we need to find out the area, required area. हमें वो section, ऐसा section choose करना है जो इतना ultimate load बर्दाश्त कर सके और जिसका critical stress इतना हो. So हमारे पास equation क्या थी, in the previous lecture we have studied that PU is equal to phi C F critical into gross area. So this equation was like PU equal to, और equal की तरफ ये दोनों ये चीज़ें थी. Initially equation was like this, 5C F critical into AG into AG. We need to find out the AG. तो बाकी जो दो टर्म्स थी वो हम इसको P ultimate के नीचे ले गए. So that's how this equation comes into play. And P ultimate, what is P ultimate? That is 600 kips. Phi value for the compression member is 0.9. F critical, which we have initially assumed as 33 KSI, and we need the gross area required is 20.2 inch square. That means हमें कुछ ऐसा सेक्शन चूज करना है W18 जिसका एरिया कितना हो, 20.2 या इससे ज़्यादा होना चाहिए. सही है. तो अब आप क्या करोगे, AISC टेबल्स में जाओगे एंड फ्रॉम देयर यू गोना फाइंड आउट द सेक्शन. सो इफ आई गो टू द टेबल W18, so this is W section, and I'm gonna go to the I'm gonna choose the section which has the area closest to it. तो अगर देखा जाए तो W18 ये शुरू हो रहा है, but W18 by 50, 55, 60, 65, 71. So this area W18 by 17, this is closest to it because इसका एरिया क्या है 20.8, whereas we require 20.2. तो सबसे करीब कौन सा गया है, ये है 18 by 71. So we gonna choose this section W18 by 71 as the initial trial section in the trial 1. So that's how we gonna choose them. हम ये वाला member select करेंगे and then we gonna cross check it कि whether this member is safe or not. So we would select W18 by 71 and then we need to find out the slenderness ratio and this thing, and we need to find out that which equation we gonna use. तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने मेंबर चूज कर लिया 18 by 71. अब 18 by 71 के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, KL by R slenderness ratio, and I need to find out this so that I can decide that which equation is to be used. तो सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, KL by R. Now KL by R कैसे फाइंड आउट करेंगे, KL तो हमें गिवन है, KL is given in the question. ठीक है, that is 26 and we need to find out the R. अब इस सेक्शन की R वैल्यू कितनी है ये जाके आप डिज़ाइन टेबल से देखेंगे, एंड डिज़ाइन टेबल में गए हम 18 by 71. इन द नेक्स्ट पेज आपको रेडियस ऑफ गायरेशन दी होगी. तो हमारे पास 18 by 71 मेंबर की जो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है, याद रखिएगा आपने मिनिमम वाली रेडियस ऑफ गायरेशन यूज़ करनी है. सो इन दिस लाइन ये रेडियस ऑफ गायरेशन है अबाउट एक्स एक्सिस एंड दिस इज अबाउट वाई एक्सिस. इनमें से कम कौन सी है, ये वाली है, तो आप ये वाली यूज़ करेंगे आर मिनिमम. सही है. सो इन दिस इन द लेक्चर आपको थोड़े से वो डायरेक्ट स्टेप वो पड़ा, बट आई गोना शो यू कि वो होगा कैसे. सो आप क्या करोगे, सबसे पहले KL by R आपने क्या करना है, KL कितना है, दैट इज 26. सो 26 हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 12 एंड R मिनिमम कितनी थी, ये जो अभी हमने देखी है फॉर दिस सेक्शन, इट इज़ 1.7. जब मैं ये वाली वैल्यू ये सारी इस चीज़ को कैलकुलेट करूँ 126 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 1.7, दैट कम्स आउट टू बी 183.5 समथिंग लाइक 183.5. ये इस चीज़ की वैल्यू आ रही है KL by R की. सही है. सो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने मेंबर चूज कर लिया, आपने उसके बाद स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड करनी है. ये 10 स्टेप डायरेक्ट हुआ पड़ा, बट मैं आपको पहले आप क्या करूँ कि आपने ये फाइंड कर लेना है, देन आपने क्या फाइंड करना है, फिर आपने ये चीज़ फाइंड करनी है 4.71 E डिवाइड बाई FY. अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4.7, E की जगह क्या पुट करोगे, यू गोना पुट 29,000 KSI मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और FI कितना है फॉर A992 स्टील, दैट इज 50 KSI.
दैट इज 50 KSI। ये वैल्यूज पुट कर दोगे 4.7 अंडर रूट 29,000 डिवाइड बाई 50, और इसकी वैल्यू क्या बन रही है, इसकी वैल्यू आती है कुछ 113.5 आती है। कितनी आएगी, ये 113.5। आप वैल्यू चेक भी कर लीजिएगा अपने एंड पे भी, बट मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये वैल्यूज आ रही है। KL/R की वैल्यू आ रही है 183.5 समथिंग, एंड उसकी क्या वैल्यू आ रही है 4.7 E डिवाइड बाई FI, इसकी वैल्यू ये आ रही है। सिंस KL/R इज ग्रेटर देन दिस, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर है, तो फिर आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो आप मैं प्रीवियसली हम लेक्चर में कर भी चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आप ये वाली क्रिटिकल एफ क्रिटिकल स्ट्रेस के लिए ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, वही इलास्टिक और इन इलास्टिक बकलिंग पार्ट। इफ़ आई कुड रिपीट दैट, इफ़ आई कुड गो बैक टू दैट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपको क्या यूज़ करना था। आई कैन शो यू लाइक दिस थिंग। तो ये था, वेट अ मिनट, दिस वाज द थिंग, ठीक है। हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि अगर इससे वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो फिर आप ये यूज़ करेंगे, और अगर कम हो जाए तो ये वाली यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो आपने चूंकि हमारे KL/R की वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो वी गोना यूज दिस फार्मूला, एंड इफ इट वुड हैव बीन लेस देन दिस वैल्यू देन वी वुड हैव यूज दिस फार्मूला। सो हमारे पास चूंकि इससे ज़्यादा है तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया 0.877 FE। व्हाट इज दिस E? E इज द इलास्टिक स्ट्रेस और बकलिंग स्ट्रेस हो जाएगा। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है, इसका भी सिंपल सा फार्मूला है जो कि हम प्रीवियसली कर चुके हैं, वेयर FE वाज इक्वल टू पाई स्क्वायर E। इससे नेक्स्ट स्टेप में उसने बताया हुआ, बट इसकी क्या चीज़ है, ये फार्मूला था इसके लिए पाई स्क्वायर E डिवाइड बाई KL/R का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल से उसने बताया हुआ है। सो आप E कैसे फाइंड आउट करोगे, दिस इज द फार्मूला फॉर इलास्टिक बकलिंग स्ट्रेस, पाई स्क्वायर E डिवाइड बाई KL/R का होल स्क्वायर। सो आपको पता है पाई स्क्वायर भी पता है, E भी पता है, सिर्फ KL/R की जगह वैल्यू कौन सी पुट कर देनी है आपने 183.5 जो आपने अभी कैलकुलेट की। इस स्टेप में आपको डायरेक्टली बार बार मेंशन कर रहा हूँ, डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है। तो आप सिंपली क्या करोगे, पाई स्क्वायर E, ठीक है, पाई की वैल्यू पाई स्क्वायर पुट कर दिया, E की वैल्यू पुट कर दी दैट इज 29,000, और डिवाइड बाई KL/R जो कि आपने इधर कैलकुलेट किया दैट वुड हैव बीन 183.5 का स्क्वायर। जब ये करोगे सब फाइंड आउट करोगे तो इस सब की वैल्यू क्या निकलेगी 8.5। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एंड यू गोना शो अप कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। सो आपने क्या किया, इलास्टिक बकलिंग स्ट्रेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल KL/R फाइंड करना है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये फाइंड करना है कि आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। फिर ये चेक करना है कि वेदर स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन दिस और नॉट। अगर तो ग्रेटर है तो ये फार्मूला यूज होगा, अगर कम होगी तो दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। अब इस फार्मूला में आपको क्या चाहिए, E चाहिए, तो आप इसको फिर थर्ड स्टेप वुड बी कि आप FE कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए फार्मूला क्या है, इट इज़ मैंशन इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है जी। इलास्टिक बकलिंग स्ट्रेस, उसमें सिंपली आपने क्या करना है, पाई स्क्वायर E KL/R, जो KL/R की वैल्यू पुट करनी है, और आपके पास इलास्टिक बकलिंग स्ट्रेस आ जाएगा। सो अब आपके पास क्या आया, क्रिटिकल स्ट्रेस कितना आ गया 7.455। कितना आया 7.455। तो अब आप क्या करते थे कि फाई F क्रिटिकल इंटू ग्रॉस एरिया, तो फाई दैट इज 0.9, F क्रिटिकल अज्यूम हमने कितना किया था, अगर मैं पिछली स्लाइड में जाके देख सकूं, हमने इनिशियली अज्यूम कितना किया 33 KSI, कि इतने पे जाके कॉलम फेल हो जाएगा। हाउएवर इन रियलिटी क्रिटिकल स्ट्रेस कितना निकला, ये हमारी एजम्पशन थी 33 KSI, इन एक्चुअल हमारे पास कितना आया, दैट केम आउट टू बी 7.455। सही है, तो आपने क्या किया 0.9 इंटू F क्रिटिकल, और जो ग्रॉस एरिया जो भी आपने सेक्शन चूज़ किया, ये जो आपने सेक्शन चूज़ किया इसके ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कितनी आई, चेक लगाना है स्ट्रेंथ कितनी बन रही है, दैट कम्स आउट टू बी 140 किप्स, विच इज़ वेरी लेस देन P अल्टीमेट। आप के मेंबर पे, जो कंप्रेशन मेंबर पे लोड कितना आ रहा है, दैट इज 600 किप्स, और मेंबर जो आपने सेक्शन चूज किया उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है 140 किप्स, विच इज मच लेस देन दैट। वी नीड टू चूज अ बिगर सेक्शन फॉर दिस थिंग, सही है, तो हमें इससे बड़ा वाला सेक्शन चूज करना है। सो अब आप क्या करोगे, ट्रायल नंबर 2, ट्रायल नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, बिकॉज उसके लिए अब फिर से वही F क्रिटिकल चाहिए हमें, बिकॉज द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ F क्रिटिकल वॉज सो फार ऑफ अज्यूम अ वैल्यू हाफ ए बिटवीन 33 एंड 745। देखिए इनिशियली हमने क्या अज्यूम किया है, F क्रिटिकल कितना है 33 KSI, और एक्चुअली क्या आया 7.455।
तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि क्रिटिकल स्ट्रेस इतने पे जाके फेल होगा, जबकि वो 7.455 पे ही फेल हो गया। तो हमें सम वे इनके दरमियान में कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों की एवरेज वैल्यू कर लेते हैं। सो एवरेज वैल्यू कैसे करेंगे, 33 प्लस 7.5 है, अगर लेट्स से तो मैं 7 ही कर लूँगा, तो 33 प्लस 7.455, ठीक है जी। आप इन दोनों की एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। एवरेज कैसे करेंगे, 7.45 है, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, दैट कम्स आउट टू बी 20.25 समथिंग। हम एफ क्रिटिकल अज्यूम कर लेते हैं इन दोनों की एवरेज वैल्यू कि 20 है। तो 33 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 40, 40 डिवाइड बाय 2, 20 की एसआई। तो अब हम एफ क्रिटिकल यूज़ करेंगे 20 की एसआई। हम अज्यूम करते हैं कि लेट्स से अब क्रिटिकल स्ट्रेस कितना है, 20 की एसआई। अब 20 की एसआई के हिसाब से हम फिर से दूसरा सेक्शन चूज करेंगे, ग्रॉस एरिया, कि अब हमें ग्रॉस एरिया कितना रिक्वायर्ड है। तो देन अगेन वी गोना रिपीट द सेम स्टेप, पी अल्टीमेट हमें पता है, वही प्रोसीजर है, वही स्टेप से हम 0.9 भी हमें पता है। एफ क्रिटिकल अब कितना है, 20 की एसआई। जब एफ क्रिटिकल हमने अब अज्यूम किया 20 की एसआई, नाउ वी नीड द एरिया ऑफ 33.3 इंच स्क्वायर। इनिशियली हमने एरिया कितना रिक्वायर्ड था, 20.2 था, अब हमें एरिया रिक्वायर्ड कितना है, 33.3। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द बिगर सेक्शन, वी नीड टू चूज द बिगर सेक्शन। तो अब ऐसा सेक्शन चूज करना है जिसका कम से कम एरिया 33.3 या उससे थोड़ा ज़्यादा उसके आसपास हो। तो देन अगेन हम डिज़ाइन टेबल्स में जाएंगे, और डिज़ाइन टेबल में अगर मैं जाके देखूँ तो हमारे पास क्या आ रहा था, अगर इफ़ आई लुक इनटू दिस थिंग, 18/71, 18/76, 38, 106। सो इधर तक जितने भी एरियाज थे 106 था, उसका ग्रॉस एरिया कितना, 31.1, विच इज़ लेस देन आवर रिक्वायरमेंट। आवर फॉर 18/119 उसका एरिया कितना है, 35.1। तो हम एरिया कौन सा सेक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, W18/119, सही है, क्योंकि उसका ग्रॉस एरिया हमारे रिक्वायर्ड एरिया से ज़्यादा है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली एरिया सेक्शन कौन सा चूज़ करोगे, W18/119, ठीक है जी। अच्छा, अब देन अगेन यूज द W18/119, इसका ग्रॉस एरिया इससे रिक्वायर्ड एरिया से ज़्यादा है, दैट मीन इट इज़ ओके। फिर आपने क्या करना है, उसकी स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड आउट करनी है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो जाएगी, 26 × 12 विच इज़ गिवन। अब इसका आर मिनिमम यूज़ करोगे W18/119 का। तो अब आप क्या करेंगे, देन अगेन फिर से डिज़ाइन रेट में गए और आप W18/119 का आप जाके इसका आर वैल्यू यूज़ करेंगे। सो W18 and 119, दिस इज दिस थिंग। ये आप इधर से आ जाओगे, लाइन ड्रॉ कर लो 18/119 पे, और इसकी जो मिनिमम आर रेडियस, जो रेडियस ऑफ ग्रेशन वैल्यू एरिया, दैट कम्स आउट टू बी 2.69, जो कि ये है हाईलाइटेड है, ये 2.69। तो अब आप ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। So this value is used, KL/R 116, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो वैल्यू पहले आपने ये भी चेक करना है, स्लेंडरनेस रेशियो वैल्यू 200 से कम है तो भी तो ही ओके होगा। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 200, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा मेंबर यूज़ करना पड़ेगा जिसकी रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा होगी, आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी ये टोटल होल रेशियो कम हो जाएगी। तो ये ख्याल भी रखना है कि इसकी वैल्यू 200 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर 200 से एक्सीड कर जाएगी तो देयर आर चांसेस कि उसमें बकलिंग हो सकती है। सो KL/R फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद हम 4.71 E/FY, दैट वुड रिमेन सेम, ठीक है। इसकी वैल्यू वही 1113 ही रहेगी, क्योंकि E भी वही है, FY भी वही है, क्योंकि मेंबर का सिर्फ साइज़ बढ़ा रहे हैं। अगर साइज़ बढ़ा रहे हैं तो उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी वही रह रही है, FY भी नहीं चेंज हो रहा, तो उसकी वैल्यू तो 1113 है, ठीक है। बाकी हमें और क्या चाहिए होता है, इलास्टिक स्ट्रेस FE फॉर दिस सेक्शन। हर सेक्शन की स्लेंडरनेस रेशियो भी अलग होती है, इलास्टिक स्ट्रेस भी चेंज होगा, चूंकि स्लेंडरनेस रेशियो चेंज हो रही है। तो π² E KL/R, अब आप ये वाली यूज़ करोगे तो आपके पास इलास्टिक स्ट्रेस कितना आ रहा है, 21.27, सही हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप इज, अब आपने चेक करना है KL/R इज लेस देन दैट और नॉट, इस वाले फैक्टर से। तो आप देखें KL/R, हमारे KL/R की वैल्यू कितनी है, 1116, विच इज़ ग्रेटर देन दिस थिंग, विच इज़ ग्रेटर देन दिस थिंग। तो अब आप फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। अगर ये से कम होती तो हम दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। अब इस फार्मूला में क्या चाहिए था हमें, इलास्टिक स्ट्रेस हम पिछली स्लाइड में कैलकुलेट, इस सेक्शन के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि 21.27 है, ये वाला। तो अब आप क्या करोगे, ये वैल्यू पुट कर दोगे 0.87 ये इलास्टिक बल्किंग स्ट्रेस इसमें, और आपके पास एफ क्रिटिकल स्ट्रेस कितना आया। अब देखिए सेकंड टाइल में हमने अज्यूम कितना किया, 20 की SI, और ये कितना इसके आसपास गया तकरीबन 18.65, ठीक है, ऑलमोस्ट सर्च नहीं आ रहा। अगर ये दोनों एक्जैक्टली सेम आ जाते हैं, दैट मीन्स हमारा मेंबर जो था वो
कंप्लीट हो गया था, बट उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्रॉस चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, एफ क्रिटिकल इंटू 5C इंटू AG। ठीक है, तो 5C वही है, एफ क्रिटिकल हमने फाइंड कर लिया 18.65, और आप ग्रॉस एरिया कौन सा यूज़ करोगे, जो अभी सेक्शन यूज़ किया उसका एरिया यूज़ करोगे। ठीक है, जो आपने अभी 18/119 यूज़ किया, अब इसका ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई करना है, इससे नहीं करना। तो आपने देन आपने ये किया, और आपके पास लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी इसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, 589 किप्स, विच इज़ स्टिल लेस देन पी अल्टीमेट, जो कि अभी भी थोड़ी सी कम है, पास है बट अभी भी इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी से कम है। तो अब आपको क्या करना है कि चूँकि पास है लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो एक सेक्शन और बड़ा यूज़ कर लें। ठीक है, इससे थोड़ा सा हायर सेक्शन यूज़ कर लें। तो आप क्या करोगे, इससे नेक्स्ट सेक्शन, दिस इज़ वेरी क्लोज, सो ट्राई द नेक्स्ट लार्जर साइज। तो इससे बड़ा वाला जो कॉलम, इससे बड़ा वाला जो सेक्शन है वो कौन सा है, ट्राई W18/130। ठीक है, अगर आप डिज़ाइन एड में जाके देखोगे तो आपके पास नेक्स्ट बिगर सेक्शन कौन सा बन रहा है, अगर W18/119 है, अब आप सेक्शन कौन सा यूज़ कर लो, W इससे थोड़ा सा लार्जर वाला सेक्शन यूज़ कर लो। ठीक है, तो वो बन रहा है W18/1/30, जिसका ग्रॉस एरिया कितना आ रहा है 38.2, और आप इससे थर्ड ट्रायल यूज़ करोगे। तो अब आप इसका थर्ड ट्रायल करोगे तो उसका ग्रॉस एरिया कितना है 38.2, जबकि आपको कितना रिक्वायर्ड था वो वही है। ठीक है, आपको एरिया रिक्वायर्ड दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, अब आपको ये पता है कि रिक्वायर्ड एरिया नहीं है। अब आप इसका डायरेक्टली क्या कर लोगे, KL/R, देन अगेन आप इसकी स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड आउट करोगे, या आप करना चाहते हो तो आप उसी तरीके से वही स्टेप्स रिपीट कर सकते हो, रिक्वायर्ड एरिया निकालो उसका, जबकि वो रिक्वायर्ड एरिया कम ही होगा। सो ग्रॉस एरिया आ गया। अब आपने क्या किया, स्लेंडरनेस रेशियो, देन अगेन KL/R मिनिमम। अब उसका इस वाले नए वाले सेक्शन का R यूज़ करोगे, नए वाले सेक्शन का R भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। वो ये है कि आपने ये सेक्शन यूज़ किया 130, W18/130, और आप इसकी लाइन लगा दो ऐसे, और इसकी स्लेंडरनेस रेशियो, इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ रहा है, 2.7 आ रहा है, तो आपने 2.7 यूज़ कर दिया इसमें। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 115.6। अब इसके लिए इलास्टिक स्ट्रेस निकाल लोगे, क्योंकि नया सेक्शन यूज़ किया, इसके लिए इलास्टिक स्ट्रेस कितना आ रहा है, 21.42। ठीक है, फिर से देखोगे KL/R इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर ही है, तो फार्मूला ये यूज़ होगा। अब ये वाला इलास्टिक स्ट्रेस इससे मल्टीप्लाई किया, आपके पास कितनी आ रही है, क्रिटिकल स्ट्रेस कितनी आ रही है, 18.79। आप इसको इसके ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, चेक करें क्रिटिकल स्ट्रेस तकरीबन उतना ही आ रहा है, बस सिंपली क्या कि एरिया बड़ा यूज़ कर दिया, तो जिसकी वजह से लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, इस वजह से हमने उसको चेक ही नहीं किया दोबारा से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.9 इंटू एफ क्रिटिकल स्ट्रेस इंटू ग्रॉस एरिया। अब हमारे पास लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी आ रही है, 600 किप्स हो गया। तो ऑल क्लियर है जी, आपके पास देखो बकलिंग में फेल नहीं हो रहा, स्लेंडरनेस रेशियो निकाली, उसका चेक भी लगा लिया, जनरल बकलिंग में नहीं हो रहा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास लोड कैरिंग कैपेसिटी में भी पास हो रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने एक लोकल बकलिंग इफेक्ट भी चेक करना है। ठीक है, अब लोकल बकलिंग के लिए जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया, प्रीवियस लेक्चर में बताया कि आप क्या करो कि जैसा जो भी सेक्शन यूज़ कर रहे हो, अगर उस सेक्शन के साथ अगर छोटा सा C लिखा होता, ठीक है, जैसे कि ये एक सेक्शन है, जैसे कि ये एक सेक्शन W18/76, इसके साथ अगर सबस्क्रिप्ट या फुट नोट में एक लिखा पड़ा है C, दैट मीन्स ये सेक्शन कॉम्पैक्ट है, दैट मीन्स इस मेंबर में चांसेस हैं कि लोकल बकलिंग होगी, तो आपको इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस करनी पड़ेगी। बट जिनके साथ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स उसमें लोकल बकलिंग इफेक्ट नहीं है, जैसे कि हमने अभी सेक्शन यूज़ किया W18/130 और इसके साथ C नहीं मेंशन, दैट मीन्स इसमें लोकल बकलिंग नहीं होगी। बट आप चेक भी कर सकते हैं, और चेक वही रूटीन है उसी तरीके से, बट जब डायरेक्टली नज़र आ रहा है लोकल बकलिंग इफेक्ट नहीं होगी तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप इसके लोकल बकलिंग इफेक्ट भी चेक करें, तो देन यू गोना यूज द सेम मेथड जो कि हमने प्रीवियस जो एनालिसिस किया था प्रॉब्लम, उसी तरीके से आप इसका लोकल बकलिंग इफेक्ट चेक करेंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास लेक्चर, और दिस इज हाउ इट इज। डिज़ाइन हो गया लोकल, दैट मीन्स this shape is not slender, there is no footnote in the dimension and property table to indicate it, so the local buckling does not have to be investigated। ठीक है जी, अगर C नहीं लिखा हुआ दैट मीन्स लोकल बकलिंग इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर आपसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, दैट मीन्स आपने चेक करना है। तो आपके पास सेक्शन पास हो गया क्या, W18/130। 18 इसमें क्या, इसकी डेप्थ है, एंड 130 इज द इट्स यूनिट वेट। यूनिट वेट इन व्हाट, पाउंड पर फीट, पाउंड पर फीट। ठीक है जी, ये इसका यूनिट वेट हो जाएगा। अच्छा जी, दिस इज़ हाउ वी बेसिकली डिज़ाइन अ मेंबर। ठीक है, इस तरीके से हम कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन करते हैं। आई गोना रिपीट दिस स्टेप ताकि आपको एक चीज़ दोबारा से क्लियर हो जाए। इनिशियली क्या होगा, डेड लोड गिवन होगा, लाइव लोड गिवन होगा, आपको
सेक्शन की शेप बताई होगी कि कौन सा सेक्शन यूज़ करना है, डब्ल्यू सेक्शन यूज़ करना है, आपने चैनल सेक्शन यूज़ करना है, एंगल सेक्शन यूज़ करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से। और आपको क्या दिया होगा, उसकी इफेक्टिव लेंथ होगी। आपने क्या करना है, उसके लिए सेक्शन बताना है। तो इनिशियली क्या कर लो, पी अल्टीमेट फाइंड कर लो। पी अल्टीमेट के बाद एफ क्रिटिकल। पहला स्टेप क्या है, सबसे वाली जो चीज़ है कि एफ क्रिटिकल पहले इनिशियली अज्यूम करना है। वो कैसे करना है, 2/3 ऑफ एफ वाई, ठीक है, 50 के एस आई है, उसको 2/3 होगा, वो कितना बन रहा है 33 के एस आई। अगर एफ वाई चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो जाएगा। जब आपके पास एफ क्रिटिकल आ गया, उससे आपने पहले ट्राइब के लिए रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेना है। फार्मूला क्या होगा, पी यू डिवाइड बाय 5c एफ क्रिटिकल। रिक्वायर्ड एरिया निकाल लिया। रिक्वायर्ड एरिया के बाद चले जाओगे सेक्शन में, AIC टेबल डिजाइन रेट में, उधर से जाके सेक्शन चूज करोगे कि जिसका एरिया इतना हो या इससे ज़्यादा हो। जब आपने वो चीज़ यूज़ कर लिया, फिर आपने उस सेक्शन के लिए क्या करना है, स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उस मेंबर के लिए स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड आउट कर ली। स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड कर ली, फिर आपने उसके लिए ई वाली टर्म फाइंड करनी है, 4.71 ई डिवाइड बाय 5। फिर ये चेक करना है कि स्लेंडरनेस रेशियो इससे कम है ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो ये फार्मूला यूज़ करोगे, अगर कम है तो दूसरा फार्मूला यूज़ करोगे। अब इस फार्मूला में क्या हो जाएगा, आपको इलास्टिक स्ट्रेस चाहिए। इलास्टिक स्ट्रेस या बकलिंग स्ट्रेस आपको फार्मूला गिवन है पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाय के एल बाय आर का स्क्वायर, वो वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे जो कि ये आई है, ठीक है। जब क्रिटिकल स्ट्रेस आ गया, क्रिटिकल स्ट्रेस को जब आप ग्रॉस एरिया और उसके स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, आपने उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। अगर ये वैल्यू पी अल्टीमेट से कम है, दैट मीन्स आपका मेंबर फेल हो रहा है। अगर इसकी लोडिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है, दैट मीन्स मेंबर पास हो रहा है। आपने तब तक मेंबर रिपीट करते रहना है, सेक्शन बड़ा चूज़ करते रहना है जब तक आपकी लोडिंग कैपेसिटी पी अल्टीमेट से बढ़ ना जाए। अब आपने क्या करना है कि जो नए वाले मेंबर है उसके लिए क्रिटिकल स्ट्रेस इतना था, इनिशियली जो अज्यूम किया वो कितना था 33 के एस आई, तो आपने इन दोनों की एक एवरेज वैल्यू ले ली 33 और 7, इससे आपके पास एक एवरेज वैल्यू, और आपने अब इस एफ क्रिटिकल से नया ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड फाइंड आउट करनी है। देन वही रिपीट करते जाने स्टेप्स, और आपका इस तरीके से कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन हो जाएगा जब तक कि आपका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है या मेंबर की जो स्ट्रेंथ है वो पी अल्टीमेट से बढ़ ना जाए।